Okay. Okay. Hi guys. So yesterday we did ancient India's first part, which was Indus Valley Civilization and basic introduction of all the uh, Stone Age periods, that is Paleolithic, Mesolithic, and Neolithic ages. Okay. So today we will try to study Vedic civilization. So, as we know, like in proto-historic age, there were two predominant civilizations which happened in Indian subcontinent. The first one we covered yesterday was Indus Valley civilization, and the second most famous civilization was the Aryan civilization or the Vedic civilization. Okay, so around that 1500 BC mark, around that 1500 BC mark, uh, Vedic civilization started. Okay, so and it continued till 600 BC. Okay, so basically it is actually continuing till that mark. That it is entering the uh, pre-Vedic. It is entering the post-Vedic period. Okay, so basically 1500 BC to 1000 BC is the Vedic period, and 1000 BC to 600 BC is called post Vedic period. Okay, so 1500 से 1000 तक वैदिक पीरियड है. ठीक है, तो हमने डिवाइड भी कर लिया वैदिक वैदिक एज को दो पार्ट्स में. उसके बाद अराइवल ऑफ आर्यंस. ओके, so how did Aryans appear into Indian subcontinent? So obviously, like Aryans were like, there is a theory Aryans arrived from somewhere and then Vedic civilization started. Okay, but there is a of this famous Singrauli excavations uh, in Uttar Pradesh. So it is very remarkable. Why? Because it can change everything. Okay, so it can change the way we have studied Vedic civilization. Because the timing of that Singrauli, the people who used to live that near that area of Singrauli, the time period is said to be like somewhere early, like somewhere near the Vedic civilization or earlier than Vedic civilization. Okay, so it is around that 1750 or like that mark, like between Indus Valley and Vedic civilization period वाला age में Singrauli excavations के कुछ हम लोगों को evidences मिले हैं, and जिनका कार्बन डेटिंग करके पता चला है कि उनका पीरियड मतलब रहा होगा करीब इंडस वैली और वैदिक के बीच में. And the most interesting point about that is कि मतलब it was a warrior clan. Warrior clan क्यों था? क्योंकि there were some dead bodies जिनका कि साथ में मतलब उन्हें दफनाया गया था with a sword or with some weapon with them. So obviously like weapon was such a priority कि तो उन्हें दफनाया भी जा रहा है with a weapon. मतलब समझ रहे हो आप? तो लाइक सिंग्रौली एक्सकवेशन स्टिल द वर्क इज गोइंग ऑन, इसलिए अभी तक कुछ पढ़े नहीं है, एनसीईआरटी में कुछ गिवन नहीं उसके बारे में. But if things like pan out accordingly, like जैसा कि अभी इनिशियल स्टेजेस में मिला है सिंगरौली में, देन ये पूरा जो आर्यन का जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं कि आर्यन बाहर से आए हैं वो चेंज हो जाएगा. बिकॉज इफ देयर वाज अ क्लैन जो कि तुम्हारा मतलब इंडिया में था एंड दैट वाज अ वॉरियर क्लैन, देन ऑब्वियसली थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली. ठीक है, मतलब ये जो थ्योरी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इन एनसीईआरटीज की, आर्यंस बाहर से आ रहे हैं. ठीक है, तो आर्यंस बाहर से तो आ रहे हैं, लेकिन कहाँ से आ रहे हैं? तो देयर वर डिफरेंट पीपल, सबका अपना एक थ्योरी था. ठीक है, तो सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरीज इज ऑफ मैक्स मुलर. तो मैक्स मुलर क्या बोलते हैं, लाइक फ्रॉम सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हैं. मतलब आप समझ सकते हो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाला एरिया आप कह सकते हो, एक ईरान इराक वाला एरिया से लोग आ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक क्या बोल रहे हैं, ही इज सेइंग कि आर्कटिक पोल से लोग आ रहे हैं. ठीक है, आर्कटिक पोल. ठीक है, आर्कटिक पोल से आ रहे हैं आर्यंस. स्वामी दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं तिब्बत से आ रहे हैं. अगेन ही वो क्या बोल रहे हैं, वो तिब्बत से बोल रहे हैं, मतलब तिब्बत. ठीक है, तो इट इज अगेन पॉसिबल. तो दयानंद सरस्वती की और स्पेशल क्या बात है, ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. ठीक है, ही वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज. एंड इवन यू नो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो भगत सिंह थे ना, भगत सिंह के फादर, लाइक ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय आर्य समाज. ओके,
So basically, there is some link with Bhagat Singh and Dayanand Saraswati. ओके, सो अब वैदिक एज में इंडिया का नाम क्या रहा होगा? तो इंडिया का नाम था आर्यव्रत, ठीक है, आर्यव्रत। और आर्यव्रत का पता है वो बाउंड्रीज क्या क्या थे? तो ऊपर में था कश्मीर, फिर इधर तुम्हारा मतलब इधर का बाउंड्री कश्मीर है, इधर साइड अफगानिस्तान है, और फिर तुम्हारा इधर साइड तुम्हारा राजस्थान है, एंड इधर तुम्हारा वेस्ट गंगा, मतलब समझ रहे हो, इस एरिया में रहा होगा हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, वेस्ट गंगा मतलब यू कैन इमेजिन कि वो आपका आ रहा है प्रयाग, प्रयाग बोल रहा हूँ हम मतलब उधर से रुद्रप्रयाग और वो सब विष्णु मतलब होता है, वहां से आ रहा है फ्रॉम हरिद्वार, हरिद्वार से आ रहा है, एंड देन इट इज फ्लोइंग, ऐसे फ्लो कर रहा है ना, फिर गंगा ऐसे फ्लो कर रहा है उत्तर प्रदेश में। तो वेस्ट 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 गंगा मतलब समझ रहे हो आप, वो उत्तर प्रदेश का वो एक्सटेंड रहा होगा वैदिक सिविलाइजेशन का। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो अभी का पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान का ही पंजाब, एंड देन सम पार्ट्स ऑफ मे बी लाइक अदर पार्ट्स ऑफ द ये अफगानिस्तान का भी कुछ पार्ट्स रहे होंगे ऊपर वाले, ठीक है, जम्मू वाला एरिया रहा होगा, राजस्थान का कुछ एरिया रहा होगा, ठीक है। सो ये एक्सटेंड था। उसके बाद फिर वैदिक सिविलाइजेशन में ये कैसा सिविलाइजेशन था? सो इट वाज अ रूरल सिविलाइजेशन, ठीक है। हमारा जो वैदिक सिविलाइजेशन था वो एक रूरल सिविलाइजेशन था, क्योंकि इट वाज मेड फ्रॉम नॉट लाइक बेक्ड ब्रिक्स का यूज ज़्यादा नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और वहाँ और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था ना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन, वहाँ पर बेक ब्रिक्स के यूज हुए हैं, ठीक है। द ब्रिक्स वर बेक्ड and then used in the especially in the drains, like even there were some sites का कुछ sites थे जैसे कि हमारा लोथल हो गया और धोलावीरा, so there we had some mud houses, मतलब mud bricks के बने हुए houses थे, but there was like वहां पर ये नहीं था, लाइक जो ड्रेन था ना, ड्रेन में जो ब्रिक यूज हुआ था दैट वाज अगेन बेक्ड। तो यू कैन इमेजिन कि मतलब इट वाज लाइक वो उसको अर्बन अर्बन कितना था वो आप इमेजिन कर सकते हो। इवन पता है आपका लाइक इन इन द सिविलाइजेशन जो टाउन प्लानिंग था, टाउन प्लानिंग जो वेस्ट साइड था, टाउन का जो वेस्ट साइड था दैट वाज हायर एंड स्मॉलर, ठीक है, मतलब वो छोटा एरिया है, स्मॉलर इन एरिया है, लेकिन उसका हाइट ज्यादा है, एंड द ईस्टर्न एरिया उसका हाइट कम है बट इट वाज लार्जर, ओके, इट कवर्ड द लार्जर स्पेस, ठीक है। तो जो सिटाडेल बोलते हैं हम लोग, सिटाडेल बोलते हैं, तो सिटाडेल बोलते हैं अपर पार्ट, ठीक है, वो वेस्ट पार्ट था टाउन का, ठीक है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या रहा कि मतलब जो ये थे मतलब जो ड्रेन्स थे, मतलब जो ड्रेनेज था बेसिकली, तो मान लो कि अगर एक ये वेल है ना, जो वेल है हर घर में बेसिकली सबसे सबसे बड़ी बात कि प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा गया आईबीसी में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में प्राइवेसी का ख्याल रखा गया। हाउ वी कैन से दैट क्योंकि जो विंडोज का जो हाइट था, विंडोज का जो ग्राउंड लेवल से जो हाइट था रूम में, इट वॉज कंसिडरेबल, ठीक है। मतलब अगर कोई सोया हुआ है, सो एनीवन एल्स कांट सी दैट पर्सन, कहीं कहीं और से लोग नहीं देख सकते उसको, कोई और रूम से ऐसा ऐसा कुछ समझ लो। तो लाइक प्राइवेसी वाज टेकन केयर ऑफ इन दिस वेरी सिविलाइजेशन। और जो वेल के बारे में बता रहा था कि वेल घर के बाहर वाले कोने में रहता, मतलब बाहर रहता था, मतलब बेसिकली इवन अ पासर बाई जो रोड से जा रहा हो, उसे प्यास लगा हुआ है, सो ही कैन यूज द वेल, सो बेसिकली पासर बाई कैन ऑल्सो यूज द वेल, एंड घर वाले तो यूज करेंगे ही, मतलब इट वॉज कनेक्टेड टू द हाउस एज वेल, एंड द मतलब एंड ऑल्सो कैन बी यूज बाई समवन पासिंग बाई। तो ये सब प्लानिंग बहुत अच्छा था, एंड हर घर में वेल था बेसिकली, ठीक है। सो बेसिकली एवरी हाउस हैड अ वेल, सो यू कैन से कि मतलब हर घर में एक बाथरूम भी था। सो बेसिकली दैट वाज लाइक हम लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट, लाइक हम लोग बट उस वक्त था, ठीक है। ये हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि हर घर में बाथरूम था, हर घर में वेल था? हम लोग ये बोल सकते हैं लाइक मोहनजोदाड़ो में अराउंड 700 हाउसेस मिले हैं, एंड ऑल द हाउसेस वर हैविंग अ वेल, ठीक है। तो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था पता है? लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में अंतर क्या था? लाइक हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट, तो इसलिए हम लोग ना इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। एज पर द कन्वेंशन, अगर मान लो कोई भी कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है लाइक बेसिकली एक सिमिलर टाइप का डिस्टिंक्टिव फीचर्स, अगर मान लो एक एरिया या फिर एक मतलब एक टाइम पीरियड में मिलते हैं, तो देन दैट इज कॉल्ड अ कल्चर, ठीक है। तो जो इनका जो कल्चर था,
उसका पहला पहला साइट था हड़प्पा, तो इसलिए हम लोग एज पर द कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन, हम लोग उसका हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक भी समझ में आ गया कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, वेरी गुड। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन डिफरेंस क्या था भाई? तो वैदिक में इट वाज अ रूरल साइट, रूरल था, ठीक है, और मतलब वो रूरल सिविलाइजेशन था, और हड़प्पन वाज अ अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, वहां पे सिटीज हुआ करते थे। ठीक है, और हम लोग आगे देखते हैं वैदिक सिविलाइजेशन जो था ना, वहां पर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, मतलब लोग प्राइमरली क्या थे, किसान थे। ठीक है, इन वैदिक सिविलाइजेशन, एंड cow was worshipped like anything. ठीक है, so the importance of milches can be seen in Vedic civilization. ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन में जो आर्यव्रत रहा होगा, आर्यव्रत हमारा इंडिया, तो वो एक कृषि प्रधान देश रहा रहा होगा। ठीक है, सो ऑब्वियसली, और फिर मेनली फादर डोमिनेटिंग फैमिलीज थे। तो इसके भी कुछ हम लोग को एक्सकवेशंस मिले हैं जो ऐसा नोट करते हैं कि द डिसीजन मेकर्स वर द फादर्स इन द हाउस। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं वैदिक सिविलाइजेशन में और क्या क्या हुआ। तो बेसिकली वैदिक सिविलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी जो वेदास लिखे गए। ठीक है, वैदिक सिविलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है वेदास। ओके, तो अच्छा अच्छा, वेदा क्या मतलब लिख दिया गया था उस वक्त? नहीं, लाइक बेसिकली पहले क्या होता था, मतलब ज्ञान कैसे फैलता था, मैं लाइक अ गुरु इज टेलिंग टू हिज शिष्य, लाइक क्या हो रहा है कि देयर इज अ टीचर, टीचर इज like propagating his knowledge to the student, and then the student is propagating that knowledge to his student. So basically the flow went like that. और जो compilations हुए वो मोस्टली गुप्ता एज में हुए। जब गुप्ता पीरियड आता है ना, मतलब वो थर्ड सेंचुरी एडी में जब आता है ना गुप्ता गुप्ता एज, उस वक्त बहुत सारे कंपाइलेशंस होते हैं, लाइक महाभारत, लाइक रामायण। सो बेसिकली आप क्या, हम लोग कह सकते हैं ना कि रामायण एंड महाभारत, एक सेकेंड, इज इट रिकॉर्डिंग? yes it is getting recorded, okay, so हाँ, तो हम लोग कह सकते हैं कि लाइक नॉलेज का प्रोपोगेशन ना उस वक्त, लाइक टीचर टू स्टूडेंट, स्टूडेंट टू लाइक स्टूडेंट, फिर किसी और स्टूडेंट को प्रोपोगेट किया, मतलब अपने स्टूडेंट, फिर वो उसके अपने स्टूडेंट्स हुए, लाइक दैट वैसे ही नॉलेज फ्लो करता था। ठीक है, तो फिर सबसे पहला वेद कौन आया भाई? सबसे पहला वेद करीब 1500 बीसी में। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो ना कि लाइक ये आ रहा है करीब आपका 15, मतलब एकदम अर्ली, मतलब जब वैदिक पीरियड शुरू हो रहा है ना 1500 बीसी, उसी वक्त से मतलब ये जो वेद, मतलब ये ऋग्वेद शुरू हुआ होगा। ठीक है, मतलब उसी के आसपास। द एग्जैक्ट डेट्स कैन नेवर बी गिवन फॉर एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, तो उसका चिंता मत करो, बिकॉज वी डू द कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग इज अप्रोक्सीमेट, लाइक ऐसा नहीं है कि मतलब वो एकदम एग्जैक्ट डेट आपको बता देगा कि हाँ इस दिन का ये है। ठीक है, लाइक एग्जैक्ट डेट कांट बी टोल्ड, लेकिन मोटा मोटी आइडिया हो जाता है कि विच सेंचुरी का रहा होगा, एंड क्या एक अंदाजा मिल जाता है। ठीक है, तो 1500 बीसी में ऋग्वेद आता है, एंड ऋग्वेद एंड ये कब तक, मतलब 15,000 से लेकर 1000 बीसी तक, ये मतलब ऋग्वेद पूरा, मतलब इसका बेसिकली सारे कुछ इसके बनते हैं, लाइक इसके 10 डिवीजन होते हैं ना, 10 डिवीजन, और डिवीजन को मंडल बोलते थे ऋग्वेद में। ठीक है, तो जो 10 मंडल तैयार होते हैं ना, ये पूरे 500 साल के बीच में तैयार होते हैं। ठीक है, तो एक दिन का चीज नहीं था ऋग्वेद। ठीक है, उसके बाद द कंपाइलेशन इसका कहा होता है, इसका बेसिकली कंपाइलेशन इन पोस्ट वैदिक पीरियड बाय वेद व्यास। ठीक है, ऑल्सो कंपाइल महाभारत। तो आप समझ रहे हो ना कि ऋग्वेद को कंपाइल किया कौन? वेद व्यास ने किया ड्यूरिंग दैट 400-500, मतलब 400-500 एडी वाला टाइम, मतलब 4th सेंचुरी और 5th सेंचुरी एडी तक हम लोग कह सकते हैं। आफ्टर ऑब्वियसली आफ्टर 3rd सेंचुरी सब कुछ हुआ है, जितना भी कंपाइलेशन हुआ है ना वो गुप्ता एज में ही मोस्टली हुआ है। ठीक है, तो वेद व्यास ने किया कंपाइल महाभारत, और फिर वेद व्यास ने और भी क्या कंपाइल किया? ऋग्वेद किया। दो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ठीक है, ओल्डेस्ट मंडल क्या है? तो सेकंड से लेकर 7th वाला जो मंडल से दिया था ओल्डेस्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये सेकंड कैसे ओल्डेस्ट हो गया, और सेकंड से मतलब 7th कैसे ओल्डेस्ट हो गया? पहला वाला ओल्डेस्ट क्यों नहीं है? तो अब देखो, वेद व्यास ने जब कंपाइल किया होगा, देन ही वुड हैव फॉलोड हिज ऑर्डर, मतलब उनका उन्होंने एक ऑर्डर तय कर दिया 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, लेकिन जो 2 से 7 जो था ना, मतलब वो सबसे पुराने थे, सबसे पहले वो आए थे, लेकिन वेद व्यास ने उनको मार्किंग क्या दिया? 2 से 7 दिया। ठीक है, तो ओल्डेस्ट मंडल 2 to 7 है। न्यूएस्ट मंडल क्या है? न्यूएस्ट मंडल 10th मंडल, विच इज ऋषि महासूक्तिया
पुरुष शुक्ता। तो बेसिकली ऋषि महाशुक्तियां, जो ऋषि महाशुक्तियां हैं, दैट इज 10th मंडल एंड दैट इज द न्यूएस्ट मंडल, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें वर्णा सिस्टम है। वर्णा सिस्टम क्या होता है कि बेसिकली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया सोसाइटी को, और वो क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हर डायनेस्टी में से कि देखो, क्षत्रिय डायनेस्टी कौन था? मौर्य वो क्षत्रिय डायनेस्टी, राइट? ब्राह्मण डायनेस्टी कौन था? ये सुंगा डायनेस्टी जो मतलब होगा, भी हम आगे पढ़ेंगे भी एक्चुअली। ठीक है, तो क्षत्रिय हम लोग मौर्य, फिर सुंगा लोग ब्राह्मण थे, एंड जो गुप्ता डायनेस्टी था दैट वाज वैश्य, वैश्य डायनेस्टी। ठीक है, तो बेसिकली पहले क्या था एंशिएंट इंडिया में? क्या था ना कि हर कैटेगरी से लोग मतलब राजा बन सकते थे। ठीक है, ये था पहले, कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब आप क्षत्रिय हो तो ही राजा, मतलब कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन, जस्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशन। ठीक है, लेकिन लेटर क्या हुआ, आने वाले टाइम में क्या हुआ कि लोगों ने क्या कर दिया, एक कास्ट सिस्टम को बहुत रिजिड रिजिड बना दिया कि अब क्षत्रिय ही राजा बन सकता है। लाइक राजपूत, व्हाट दे डिड इन लाइक आफ्टर 1000 एडी, लाइक नॉट ओनली राजपूत, लाइक इवन महाराष्ट्र में भी बहुत सारे कुछ हुआ था, मतलब ऑल ओवर इंडिया और पैन इंडिया। क्या हुआ था, लाइक ओनली क्षत्रिय वर गिवन द राइट टू फाइट, and this was basically a very big divide, like this played a very big impact in the disintegration of India। ठीक है, अब आप लड़ने का हक नहीं दे रहे हो। बेसिकली व्हाट यू डूइंग, यू आर मेकिंग योरसेल्फ पावरफुल, लाइक आप अपने अपने डिवीजन को ही बस पावरफुल बना रहे हो। क्षत्रिय ही जब लड़ सकते हैं तो ऑब्वियसली आपकी पावर भी वीक हो जाती है, राइट? लाइक व्हेन द कंट्री विल नीड यू, देन दे आर नॉट लाइक दे कांट फाइट, दे हैव नेवर यूज टू फाइट, तो नहीं कर सकते, तो लड़ नहीं सकते। तो बेसिकली अगर बाहर के फॉरेन पावर्स आते हैं, देन इट विल बी हार्ड टू कोप अप, राइट? तो वही हुआ इंडिया के साथ एक्चुअली, मतलब दिस इंटीग्रेशन इंडिया का इसलिए ही हुआ बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिफरेंसेस। ठीक है, ठीक है, उस पर हम लोग आगे तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे मिडिवल इंडिया में, हाउ दिस इंटीग्रेशन हैपेंड एंड हाउ फॉरेन रूल केम इनटू इंडिया। लेकिन उसके पहले 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी में क्या कंपाइल हो रहा है? ऋग्वेद हो रहा है। 10 डिवीजन है, 10 मंडल है उसमें। उसमें जो 10वां मंडल है, दैट इज द ओल्डेस्ट, दैट इज द न्यूएस्ट, एंड दैट इज ऋषि महासुक्तियां। और उसमें क्या लिखा हुआ है? 4 कैटेगरीज लिखे हुए हैं। 4 कैटेगरीज क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ओके, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मंडल फिर क्या है? ये तो सबसे नया है। सबसे इंपॉर्टेंट मंडल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है थर्ड मंडल, विच इज टेलिंग ऋषि विश्वामित्रा। ठीक है, तो 10वां क्या था? ऋषि महासुक्तिया, और ये है ऋषि विश्वामित्रा। इसमें क्या है? गायत्री मंत्र है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र किसने किसको समर्पित किया है? लाइक हु सैंग द गायत्री मंत्र फॉर द फर्स्ट टाइम? इट इज सेड कि सावित्री ने, सावित्री रिसाइटेड गायत्री मंत्र फॉर सूर्यदेव। ओके, सो बेसिकली गायत्री मंत्र जो होता है वो सूर्यदेव के लिए होता है। ओके, इन हिज प्रेज और इन हिज एडमिरेशन, और जस्ट टू वर्शिप हिम, ओके, एंड थैंक हिम। ओके, सो बेसिकली इसलिए होता है गायत्री मंत्र। एंड तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहा? इंपॉर्टेंट रहा थर्ड मंडल, ऋषि विश्वामित्र। उसे कहते हैं लाइक थर्ड मंडल इज कॉल्ड ऋषि विश्वामित्रा, एंड उसमें गायत्री मंत्र है। एंड गायत्री मंत्र सावित्री ने गाया था पहली बार फॉर सूर्यदेव। सूर्यदेव ऑब्वियसली सन गॉड। ओके, सो ओके, और भी क्या क्या चीजें लिखी हुई है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में एक और बहुत स्पेशल चीज लिखी हुई है, ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ओके, सो बेसिकली ऋग्वेद कहता है कि ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। ओके, एंड एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन है कि एक इंसान में भी एक बेसिकली क्या बोलूं, मतलब सब कुछ है। मतलब ये जो ये 4 चीजें हैं ना, मतलब ये जो 4 कैटेगरीज हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये एक ह्यूमन बॉडी में भी है। लाइक द हेड इज ब्राह्मण, लाइक हेड इज ब्राह्मण। ओके, shoulders are kshatriya। Okay, so basically your head, like Brahmins were considered to be like they were the thinkers, they were the spiritual leaders, not leaders like spiritual monks or maybe spiritual gurus। Okay, so obviously the head is Brahmin, the shoulders are kshatriya, it helps you to do all the works which you do in your lifetime. Okay, and then pate is shudra. Why? Because vaishyas were like they basically all the trading and those all stuffs were done by vaishyas. So
you can't survive without trade and commerce, right? So Vaishya and Charn like legs, your legs were the Shudra. Okay, so basically it helps you to like, you know, it helps the society to stay as it is. Okay, basically it is the lowest level, but it is one of the most significant layers of the society. Okay, so okay, Vedic civilization में ये सब था. According to Rigved, purest river of India was Saraswati. ठीक है ना. अब देखो ये बहुत ही कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर. ठीक है, ऋग्वेद कह रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर इंदस है, इंपॉर्टेंट रिवर इंदस है, लेकिन सबसे प्योरेस्ट रिवर सरस्वती है. ओके, सो व्हेन प्योर का क्वेश्चन आया देन सरस्वती, अगर इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन आया तो इंदस. ठीक है, फिर कुछ मंत्र रिसाइट किए गए थे. देयर वर सम मंत्रास. तो ऋग्वेद में जो मंत्र का उच्चारण था, रिसाइटेशन था, दैट वाज कॉल्ड होत्री. ओके, सो द मंत्र रिसाइटेशन वाज कॉल्ड होत्री. ओके, एंड देन वी हैव द सेकंड Veda, which is Samved. So we studied like हमारा 1000 BC, जो मैं 1500 BC से लेकर 1000 BC 500 सालों में ऋग्वेद को कंपाइल किया गया. अकॉर्डिंग टू दैट हमारा वर्णा सिस्टम आता है, एंड ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स आता है. फिर इवन गायत्री मंत्र आता है बाय द थर्ड डिवीजन ऑफ ऋग्वेद. ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे ऋग्वेद में. फिर सामवेद सेकंड इन द नंबर. ओके, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें बेसिकली इट इज लाइक सामवेद इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक. ठीक है, जो सारेगामापा आया था, इट वाज फर्स्ट मेंशन्ड इन सामवेद. तो सामवेद को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इट वाज बुक ऑफ चैंट्स बेसिकली. ठीक है, बुक ऑफ चैंट्स एंड सिंगिंग का बेसिक्स बेसिकली वो गिवन इन सामवेद. ओके, फिर तो ये जो 7 स्वर होते हैं, तो 7 स्वर भी का मेंशन ऑब्वियसली इसमें ही होगा. फिर देवता बेसिकली हु इज द गॉड. तो इट वाज जैसे कि ब्रह्मदेव के बारे में बात हुआ है, लाइक ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, बात हुआ है इन ऋग्वेद. वैसे ही सन गॉड सूर्यदेव हैज अ वेरी स्पेशल प्लेस इन सामवेद. ओके, एंड मंत्र रिसाइटेशन, मंत्र का रिसाइट करने का जो तरीका था, लाइक द वे ऑफ रिसाइटिंग मंत्रास वाज नाउ उद्गोत्री. ओके, तो पहले हमने जब ऋग्वेद देखा, तो ऋग्वेद में हमने क्या देखा, ऋग्वेद में देखा कि हम लोग का जो थर्ड डिवीजन है ऋग्वेद का, थर्ड डिवीजन जो ऋग्वेद का है, ऋषि विश्वामित्रा, उसमें सन गॉड के लिए गायत्री मंत्र गाया गया था. बट ब्रह्मा वाज द चीफ गॉड, मतलब ही वाज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. अभी सामवेद में क्या हो रहा है, सूर्यदेव के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है. ठीक है, और मंत्रा का जो प्रोनाउंसिएशन, जो रिसाइटेशन करने का तरीका है, दैट इज उद्गोत्री, नाउ नॉट होत्री. होत्री कब है, होत्री है ऋग्वेद में. ठीक है, यजुर्वेद इज ओनली वेद हैविंग गद्य एंड पद्य, स्टैंजा एंड पोएट्री. ओके, सो यजुर्वेद only Ved having Gadya plus Padya, okay, stanza and poetry. Rituals, Krishna Shukla, okay. तो ये कृष्ण शुक्ल पक्ष अभी भी चलता है, राइट. इफ यू सी द इंडियन, लाइक ये जो हमारा जो कैलेंडर हम लोग देखते हैं, द इंडियन कैलेंडर एक्चुअली, और द हिंदू कैलेंडर इफ यू से, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है. पहला 14 दिन होता है कृष्ण पक्ष, और मंथ का आखिरी 14 दिन होता है क्या, शुक्ल पक्ष, राइट. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया, ये कॉन्सेप्ट आया यजुर्वेद से. ठीक है, सो बेसिकली अब क्या हो रहा है, इस वेद में क्या हो रहा है, स्टैंजास भी हैं और पोएट्री भी है. ठीक है, सो बेसिकली दे आर नाउ देयर, अब मतलब देयर इज मोर सिस्टमाइज हो चुका है चीजें. ठीक है, इस वेद में. ठीक है, तो बाकी सब में क्या था, अभी तक सब हम लोग होत्री कर रहे थे, उद्गोत्री कर रहे थे, सब ये सब क्या था, बस पोएट्री था. लेकिन पहली बार स्टैंजा का कॉन्सेप्ट आ रहा है. ठीक है, अथर्ववेद इज द न्यूएस्ट वेद. अथर्ववेद इज द न्यूएस्ट वेद. इसमें क्या हो रहा है, इसमें ब्लैक मैजिक और तांत्रिक कॉन्सेप्ट आ रहा है. ठीक है, तांत्रिक वाला कॉन्सेप्ट. तो अब क्या हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, हिप्नोटिज्म हो सकता है,
ठीक है। फिर रिसाइट किसको किया जा रहा है, अब फिर से ब्रह्मा को किया जा रहा है, ठीक है। और जो ब्रह्मा को जो रिसाइट किया जा रहा है वो बेसिकली तांत्रिक गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है। तो बेसिकली यू कैन से कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, लाइक अथर्ववेद में बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, लाइक ब्लैक मैजिक और ये सब चीजें लिखी हुई, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, ऋग्वेद पहले पढ़े, फिर सामवेद पढ़े, फिर यजुर्वेद पढ़े और फिर अथर्ववेद फाइनली पढ़े। तो न्यूएस्ट वेद क्या है इसमें से, अथर्ववेद है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन वी स्टडी द वेदास, अब आता है उपनिषद्स। ओके, उपनिषद्स। तो उपनिषद्स क्या होता है, उपनिषद का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उप मतलब होता है नियर, और निषद मतलब होता है बैठना, ठीक है। तो बेसिकली गुरु और शिष्य का रिलेशनशिप ये बता रहा है कि जब शिष्य गुरु के नजदीक बैठकर कोई जब शिक्षा ग्रहण करता है तो दैट इज उपनिषद। ओके, सो टोटल उपनिषद कितने हैं, 108, ठीक है। सो 108 उपनिषद हैं, एंड 108 में 12 वैलिड है बेसिकली, मतलब 12 और लाइक हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब क्वेश्चन आया था कि हाउ मेनी ऑफ द उपनिषद्स आर वैलिड। तो 12 उपनिषद आउट ऑफ 108 इज वैलिड, जिसमें से कि दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। दो कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है मुंडक उपनिषद और एक है मांडुक्य उपनिषद, ठीक है। सो मुंडक उपनिषद इज सत्यमेव जयते, मुंडक उपनिषद इज सत्यमेव जयते, एंड मांडुक्य उपनिषद इज सत्यम शिवम एंड सुंदरम। ओके, सो उपनिषद 108 हैं, उसमें से 12 वैलिड हैं, एक सत्यमेव जयते है, एक सत्यम शिवम सुंदरम है। So Satyamev Jayate is Mundak Upanishad and Satyam Shivam Sundaram comes in Mandukya Upanishad, ठीक है। तो मुंडक में क्या आ रहा है, मुंडक में आ रहा है सत्यमेव जयते और मांडुक्य में आ रहा है सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है। ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है, तो ओल्डेस्ट उपनिषद है वृहद आरण्यक, ठीक है। वृहद, VRIHAD, वृहद आरण्यक, ARANYAKA, ठीक है। तो वृहद आरण्यक इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, ठीक है। तो ये उपनिषद में 3 उपनिषद हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है, फिर 6000 BC में आयरन डिस्कवर हो रहा है फाइनली, एंड फिर हमारा महाजनपदास का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। तो आई विल शेयर अ मैप, आई विल शेयर मैप, उसमें यू विल गेट मोर क्लैरिटी, आई एम शेयरिंग मैप। ओके, तो इस मैप में आप देख पा रहे हो कि देयर आर मेनी अर्ली स्टेट्स एंड विद देयर कैपिटल्स। ओके, तो देयर आर मेनी अर्ली स्टेट्स एंड देयर कैपिटल्स। तो क्या क्या स्टेट्स हैं भाई, हम लोग देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस एरिया, ठीक है। तो ये वंगा हम लोग देख पा रहे हैं, वंगा, ठीक है। तो वंगा क्या है, वंगा आपका वेस्ट बंगाल वाले एरिया में पड़ रहा है, ठीक है, वंगा, ठीक है। और इसका ये फिर ये है, ये अंगा। ओके, अंगा, अंगा। सो अंगा इज बेसिकली कौन सा एरिया, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं ये थोड़ा सा मैथिली की इधर वाला एरिया, मतलब आपका थोड़ा बहुत नेपाल में भी पड़ेगा, और आप कह सकते हो जो किशनगंज ये सब एरिया है ना, किशनगंज एंड पूर्णिया, ये सब वाला एरिया। तो यहाँ का कैपिटल क्या था, चंपा, चंपा नगरी या चंपा, ठीक है। मगध सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए, मगध। तो मगध का कैपिटल क्या था, तो मगध का 3 कैपिटल था। मगध का 3 कैपिटल में सबसे पहला कैपिटल कौन सा था, तो मगध का पहला कैपिटल था राजगीर, मगध का पहला कैपिटल था राजगीर। उसके बाद था पाटलिपुत्र, उसके बाद पाटलिपुत्रा बनता है और फिर वैशाली बनता है, ठीक है। फिर ठीक है, तो फिर पाटलिपुत्रा भी यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तीन कैपिटल्स रह चुके, सबसे पहला राजगीर है और फिर सबसे लास्ट में भी फिर पाटलिपुत्र ही रहेगा। तो सबसे ज्यादा टाइम के लिए मगध में का कैपिटल कौन सा रहा है, तो पाटलिपुत्र ही रहा है, ठीक है। वैशाली सबसे कम टाइम के लिए रहा है, ठीक है। फिर वज्जी,
या वज्जी। तो वज्जी इज लाइक नॉर्थ बिहार। हम लोग इमेजिन कर सकते हैं वो वाला एरिया आपका, जो एरिया है आपका वैशाली एंड लाइक गंगा नदी के जस्ट ऊपर वाला एरिया, जो तिरहुत डिवीजन है ना, तिरहुत डिवीजन ऑफ बिहार, वो वाला एरिया। तो वहां पर क्या है, वहां पर का कैपिटल क्या है, तो विदिहा और मिथिला। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ना, मतलब कि तिरहुत डिवीजन है, फिर ये पूरा वो जो मधुबनी दरभंगा वाला पूरा एरिया, मतलब पूरा मिथिला को कवर कर रहा है ये। तो बेसिकली वज्जी वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट, एक वेरी इंपॉर्टेंट महाजनपद। ठीक है, इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट संघ। ठीक है, उसके बाद वी कैन सी मल्ला। मल्ला वी कैन सी, तो मल्ला का कैपिटल क्या था, कुशीनगर, और फिर बाद में पावापुरी भी बना। ठीक है, तो मल्ला भी इंपॉर्टेंट है। मल्ला कहाँ पे था, मल्ला वाज मोस्टली नेपाल कि ऑब्वियसली वज्जी के ऊपर है, नॉर्थ बिहार के भी ऊपर है, तो आप ऐसे ही भी इमेजिन कर सकते हो कि ये रहा होगा नेपाल में। ठीक है, ठीक है, और ये अंगा वंगा को समझ ही गया होंगे आप कि अंगा जब है, ये अंगा इस तरफ वाला एरिया है, तो किशनगंज ये सब तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट बंगाल, तो ऑब्वियसली साउथ वेस्ट बंगाल क्या हो गया, वंगा हो गया। ऊपर वाला ए है, नीचे वाला वी है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से भी हो गया। उसके बाद हमारा एक है काशी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी है, वाराणसी, वाराणसी इसका कैपिटल रहा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौशला है, कौशल, कौशल एम्पायर। तो उसकी कैपिटल पता क्या रहा, उसकी कैपिटल कैपिटल रहा श्रावस्ती। ठीक है, कौशल का कैपिटल रहा श्रावस्ती। ठीक है, कौशल का कैपिटल रहा श्रावस्ती, और बाद में अयोध्या भी बना कौशल एम्पायर का कैपिटल। ठीक है, उसके बाद पांचाल्य और पांचाल। ठीक है, पांचाल, तो इसका कैपिटल रहा अहिचत्रा। अहिचत्रा कैपिटल रहा, और बाद में काम्पिल्य भी बना। ठीक है, तो पांचाल आप समझ रहे हो, पांचाल मतलब पांच टाइप का कुछ रहा होगा, पांच टाइप का कुछ डिवीजन रहा होगा। तो ये कौशल एम्पायर के थोड़े से वेस्ट तरफ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो ना कि बिहार से सबसे नजदीक कौन सा ये पड़ता है, उत्तर प्रदेश का एरिया, तो आपका वो सब पड़ता है शायद सोनभद्र एंड दो एरिया। उसके बाद फिर आपका वाराणसी ही पड़ता है। तो सबसे सबसे नजदीक कौन से, मगध, मगध के, तो नॉर्थ में वज्जी है। नॉर्थ मतलब मगध के कंपैरिजन में हम लोग देखेंगे कि मगध सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मगध के ऊपर है वज्जी, और वज्जी के भी ऊपर है मल्ला। मगध के ईस्ट तरफ है अंगा एंड मतलब नॉर्थ ईस्ट में है अंगा, और साउथ ईस्ट में है वंगा। ठीक है, फिर इमीडिएट वेस्ट में क्या है, काशी है, इमीडिएट वेस्ट में काशी है। और फिर यहाँ पे कुछ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जंगल हुआ करता था। ठीक है, मतलब झारखंड लेके जंगल है, तो यहाँ पे कोई वैसा सिविलाइजेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, बाद में ऑब्वियसली नागवंश आती है, बट उतना पॉपुलर नहीं है। ठीक है, तो ये वाला एरिया थोड़ा वेकेंट है जंगलों के चलते। ठीक है, उसके बाद काशी हो गया। उसके बाद काशी के जस्ट ऊपर है कौशाल, कौशाल वाला एरिया। ठीक है, जिसका कैपिटल श्रावस्ती में देखा। उसके जस्ट वेस्ट में है पांचाल। तो पांचाल में क्या देख रहे हैं हम लोग, पांचाल का अभिचत्रा कैपिटल है, एंड वो हल्का सा वेस्ट है बस कौशल के। उसके हल्का सा वेस्ट, मतलब आप देख रहे हो, जो गंगा रिवर है, गंगा यमुना रिवर है, उसी फ्लो में डिविजन है। ठीक है, तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि फ्लो के हिसाब से ही उस वक्त रहे होंगे सिटीज, मतलब उस वक्त के एम्पायर्स, मतलब गंगा और यमुना के आसपास ही रहे होंगे, रिवर बैंक्स पे ही रहे होंगे। ठीक है, तो फिर है कुरु, या फिर कुरु या कुरा जो बोलो। तो उसका इंद्रप्रस्थ कैपिटल रहा था, जो आप समझो, अब दिल्ली आ गए हम लोग। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये पूरा मेरठ एंड कानपुर वगैरह वाला एरिया आपका पंचाल होगा, मे बी इन लखनऊ। और कोशाल हल्का सा वाराणसी के ऊपर वाला एरिया काइंड ऑफ, मतलब आप समझ सकते हो। यूपी का कोई वैसा डिस्ट्रिक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, तो बेसिकली वो वाला एरिया, वाराणसी के ऊपर वाला एरिया, और थोड़ा सा ईस्ट भी कह सकते हो। ठीक है, इंद्रप्रस्थ में दिल्ली पहुंच गए। ठीक है, कुरु, कुरु वॉज नियर दिल्ली हरियाणा वाला एरिया थोड़ा सा हो गया। फिर तुम्हारा है सूरसेन। तो सूरसेन का कैपिटल है मथुरा। सो अगेन सूरसेन भी आप इमेजिन कर सकते हो, ये वाला एरिया, तो बेसिकली मतलब ये कौन सा एरिया हो गया, मतलब मथुरा भी है, मतलब यूपी का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट होगा मे बी हरियाणा का, कुछ पार्ट में भी हो सकता है एमपी और राजस्थान का भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा इधर से जाते हैं, तो इधर तो हमारा सबसे इधर कौन सा है, तो कम्बोज। ठीक है, तो कम्बोज, कम्बोज।
ठीक है, तो इसका कैपिटल रहा था हतका और राजापुरा। ठीक है, हतका और राजापुरा इसका कैपिटल रहा था कंबोज का, जबकि उतना मेजर टाउन नहीं है, इसलिए यहाँ पे पुष्कलवती दिया हुआ है, पुष्कलवती, बट इसका कैपिटल रहा था कंबोज का हतका और राजापुरा। ओके, एंड गांधार का कैपिटल ऑब्वियसली तक्षशिला। ठीक है, गांधार का कैपिटल तक्षशिला। ठीक है, गांधार कैपिटल तक्षशिला। ठीक है, तो हमने इधर देखा, इधर इतना सारा देख लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं साउथ की तरफ। ठीक है, तो मत्स्य, मत्स्य, ठीक है, मत्स्य, तो इसका कैपिटल रहा था विराट नगर। ठीक है, मत्स्य के कैपिटल रही थी विराट नगर, जो कि मैप में तो मेंशन नहीं है, लेकिन मत्स्य का कैपिटल था विराट विराट नगर। ठीक है, उसके नीचे वी कैन सी अवंती, तो अवंती की कैपिटल थी उज्जैन या उज्जैनी। ठीक है, तो ये अवंती आप समझ रहे हो ना कि एकदम एमपी वाला एरिया है, बेसिकली मत्स्य हो गया। जो मथुरा, मतलब ये जो सूरसेन है, दैट इज नियर दैट एरिया, मतलब ये आपका राजस्थान, हरियाणा, यूपी का वेस्ट, एकदम सबसे वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट। उसके बाद हल्का सी मत्स्य हो गया, मतलब आप समझ सकते हो एमपी का ही कुछ पार्ट, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी। फिर अवंती वाला एरिया इमेजिन कर सकते हो, एकदम एमपी का लोअर लोअर पार्ट, एमपी का लोअर पार्ट, कुछ पार्ट में भी इसका रहा होगा महाराष्ट्र और ये सब का भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग का ये आता है अश्माका। इट वॉज बेस्ड ऑन, ये गोदावरी रिवर बैंक्स पे था, मतलब गोदावरी नदी के बैंक्स पे ये रहा था ये संघ। तो ये साउथ इंडिया का ओनली महाजनपद इन साउथ इंडिया, तो ओनली साउथ इंडिया का एक लौता है ये अस्माका, सो ऑब्वियसली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कैपिटल क्या था? इसका कैपिटल था पोटन और पोटली, या फिर इसको पोटाना भी बोलते हैं। ठीक है, तो पोटाना भी बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो पोटाना और पोटली, पोटाली। ठीक है, तो ये 16 महाजनापदास हैं, जो कि बहुत, मतलब ये आपको एकदम अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए, मतलब आप बाय मैप मैंने बता दिया बहुत अच्छे से, तो आपको याद करने में भी इजी होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, मतलब इस ये 16 महाजनपद है ना, तो इसमें स्टैंड आउट कौन करेगा? इसमें स्टैंड आउट करेगा मगध। तो बेसिकली हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी विल डू सम अर्ली सिविलाइजेशन, जो बिहार में जो अर्ली सिविलाइजेशन हुआ बिहार स्पेसिफिक, वो देखेंगे। लाइक मगध, मगध में ही हुआ ये सब, हरियंका डायनेस्टी आएगा, लाइक अजात शत्रु आएंगे, एंड लाइक बिंदुसार, ये सब आएंगे। फिर नंदा डायनेस्टी में भी नंदा डायनेस्टी का भी आएगा। ठीक है, फिर फाइनली अलेक्जेंडर आ जाएगा। उसके बाद मौर्य एम्पायर का उदय होगा। तो हम लोग वो पूरा फ्लो देखेंगे। ठीक है, पूरा फ्लो देखेंगे। तो ये सब में, इस फ्लो में क्या हम लोग को पता चलेगा कि लाइक मगध विल बी द स्टैंड आउट। और मगध स्टैंड आउट क्यों होगा? मगध स्टैंड आउट इसलिए होगा क्योंकि उसके पास लाइक फर्टाइल एरिया है पूरा, मतलब वो जो गंगा वाला एरिया है, गैंजेटिक प्लेन्स है, दे आर वेरी फर्टाइल। फिर राजगीर से उनको सप्लाई भी मिलेगा, आयरन 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 ओर्स मिलेंगे बेसिकली, एंड इवन फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ सिंहभूम एंड दोज एरियाज। इवन अवंती से भी, इवन मतलब एमपी से भी कुछ वो लोग लाएंगे ये सब रिजर्व्स, मिनरल रिजर्व्स। तो बेसिकली they are able to cut down forests with the help of, basically आयरन का डिस्कवरी हो रहा है एंड मगध एम्पायर का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, सो आयरन का डिस्कवरी सबसे ज्यादा हेल्पफुल किसके लिए रहा? मगध एम्पायर के लिए रहा। ठीक है, एंड मगध विल डोमिनेट टिल टिल अराउंड 500 एडी। तो गुप्ता तक तो बहुत डोमिनेट, गुप्ता तक बहुत डोमिनेट करेंगे। फिर क्या होगा? फिर ऑब्वियसली हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन आएंगे, एंड फिर राजा हर्षवर्धन के बाद देयर विल बी अ काइंड ऑफ डिवीजन, फिर से मतलब इंडिया टूटेगा थोड़ा, एंड फिर एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होगा। ठीक है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होगा पाल्स में, राष्ट्रकूटाज में, ठीक है, प्रतिहास में। तो उसके बाद फिर फाइनली बीच में एक ये 712 के करीब या 750 के करीब आता है मोहम्मद बिन कासिम भी आता है, बट फिर 300 साल तक राष्ट्रकूटाज वाज द डोमिनेंट फोर्स इन इन द साउथ इंडिया, मतलब ये इस वाले एरिया में। तो बेसिकली वो अवॉइड लाइक फॉरेन इन्वेजन्स उतने, मतलब बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब वो लोग ट्राई बहुत करते हैं, बट उतना कुछ हो नहीं पाता है। फिर फाइनली हमारा जब मोहम्मद घोड़ी आता है ना, और पृथ्वीराज चौहान बेसिकली जब बैटल ऑफ ट्रेन हार जाते हैं, सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन जब हार जाते हैं, तो वहां से फॉरेन रूल आ जाता है। सो वी विल अंडरस्टैंड द इंटायर फ्लो। और हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी अबाउट हरियंका डायनेस्टी, एंड लाइक हम लोग वो जो शुरू वाला जो है
मतलब प्री मॉडर्न एरा वो पढ़ेंगे हम लोग, और जोग्राफी और फिर कुछ कुछ साइट्स हैं बिहार में, वो सब देखेंगे, ठीक है। टिल देन चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।